ठीक है. So today uh, we'll have a discussion on one topic that we'll see about RVSM. ठीक है. And in RVSM only we are going to see one more condition where it will be deviation at on, and then certain topics will left for the further classes. तो आज पहले RVSM का कॉल डिस्कस करूंगा. Once see the lecture plan completely about RVSM, and we'll do practice on deviation at on. Then we'll move ahead with further topics. ठीक है. Now, regarding RVSM, please do let me know if you have any doubt. Anyone has any doubt? किसी भी टाइप का डाउट? वर्टिकल सेपरेशन अभी 1000 है हम्म. एंड साइडवाइज क्या है? क्या साइड वाइज? हाँ सेम. 15 nautical mile left, 15 nautical mile right. ठीक है. So I hope everyone was clear about RVSM, and I always say and I suggest you don't have any kind of confusion over RVSM, because RVSM can be directly asked in part 2, because you are a ME candidate with a B1 candidature, so they will definitely ask what is RVSM. This is one of the topic which is related to operations as well as maintenance point of view. So RVSM is most important topic in the RT examination. ठीक है. Now we'll see about semicircular rule. Semicircular rule क्या? कट रही है रीडिंग यू टू नहीं Sorry, connected with my wife. It has been okay. रीडिंग यू टू Tell me now, how am I audible? On 5? रीडिंग 4 Yeah, 5. Okay, 4. ठीक है ना, 4-5 चलेगा, right? हाँ Now, so I was saying, semicircular rule बनाया गया था primarily to prevent head-to-head collision, लेकिन इसका कुछ वैसा खास इस्तेमाल देखने को नहीं मिला, क्योंकि अभी तक इतना ट्रैफिक इंडिया में नहीं आया है कि सेमी सर्कुलर रूल के चलते कोई प्रॉब्लम कहीं पे क्रिएट हुआ हो. ये क्यों बनाया गया था? जब आप फ्लाइट प्लान करते हो तब हमने एक कंडीशन पढ़ा था ना कि इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ देन चूज द रूट व्हिच इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ. इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स साउथ देन चूज द रूट व्हिच इज एंडिंग विद साउथ, राइट? ये हमने एक प्रॉब्लम पढ़ा था. नाउ similarly, if you are going towards east, choose whatever it is written as east, and west, so whatever it is written as west. Choose if option is there. नहीं है तो जो है वही करेंगे अपना. ठीक है. इसी में एक रूल बनाया गया कि सपोज आपने फ्लाइट प्लान बनाया, तो आपने क्रूजिंग अल्टीट्यूड डिसाइड किया और कोई सा रूट डिसाइड किया कि हम इधर से इधर जाएंगे. ठीक है. अगर आपके प्लान रूट का, ठीक है, अगर आपके प्लान रूट का जहां पे आप क्रूज करने वाले हो, जहां पे आप स्ट्रैंड एंड लेवल फ्लाइट करने वाले हो, ठीक है, तो अगर आपके प्लान रूट का क्रूजिंग अल्टीट्यूड कहां से कहां तक 29,000 फीट से लेके 41,000 फीट के बीच में जब आप क्रूज कर रहे हो, अगर उस क्रूजिंग वाले रूट पे आपका हेडिंग यानी आपका रेडियल 0 से 180 के बीच में अगर पड़ता है तो इसको कहा जाता है ईस्टर्ली फ्लाइट. यानी आपका रेडियल किस केस का बात कर रहा हूं? क्रूजिंग टाइम का. ठीक है. तो पे रीडिंग में 5 एवरीवन.
हाँ, वही है। Sierra Whiskey Papa, India Victor Papa, Redmi 5. Reading 3. What kind of noise is there? किस टाइप का noise आ रहा है? वॉइस कट रही है. Then at 2. कंटिन्यूअस फ्लो नहीं है. This. Just a second, let me see what I can do. The hotel where I'm living in, they had provided one Wi-Fi, and there I'm getting this problem, I guess. Just a second. Just a second, guys. Please wait. Other stations, please confirm what is my readability. What is my readability, guys? Reading 5. 5. Is it occasional or means continuously I'm getting on 2? What is the issue? Can you tell? बोलते बोलते कट जाता Sometime Okay, hold on a second. ठीक है, अपना फोन विंडो पे रख देता हूँ. Let's see if it capture networks or not. Okay, now tell me readability. All other stations on 5. reading 5. 5. ठीक है, India Whiskey, sorry, India Victor Papa. Currently Kilo 5. India Alpha. Hammer Devil. Kilo India Alpha. Radio 5. ठीक है. Okay. Are you also available to answer in the classroom? All other stations or anyone is on duty? Ready to answer. ठीक है. So I was saying about semicircular rule. क्या होता है? While we are planning for the route, तो हम क्या देखते हैं कि in our cruising route, जिस रूट पे हम मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंड क्रूज के केस में, ठीक है, क्रूज के केस में इफ आवर हेडिंग बिलोंग्स टू 0 to 180, ठीक है, सॉरी 0 to 180 नहीं, 001 to 179. I'll tell why 0 and 180 is not there. ठीक है, 001 to 179. If our route, अगर उस पे हमारा हेडिंग इस डायरेक्शन में है, then that is known as easterly flying. एंड अगर हमारा हेडिंग 181 से लेके 359 के बीच में है, then it is known as westerly flying, वेस्ट डायरेक्शन फ्लाइंग. ठीक है, तो एक रूल क्या बनाया गया, एक SOP बनाया गया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि इफ योर क्रूजिंग रूट इज टुवर्ड्स ईस्ट, देन चूज द फ्लाइट लेवल इन RVSM व्हिच विल बी ऑड. ठीक है, इफ योर क्रूजिंग रेडियल और हेडिंग इज ईस्ट, देन चूज द फ्लाइट लेवल इन द RVSM विल बी इवन. ये आपको प्लान करना है कि ऐसा होना चाहिए. अगर क्वेश्चन में किसी भी टाइप का ऑल्टरेशन दिया है, हम उस पर डाउट नहीं करेंगे, ठीक है, ना ही उस पर क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन नहीं. एग्जाम के प्लान में दिया है, वेल एंड गुड, नहीं दिया है कोई बात नहीं, लेकिन जब हमको प्लान करने बोला जाएगा, व्हेन वी आर गोइंग टू प्लान समथिंग, वी विल फॉलो दिस रूल. ठीक है, सो दिस इज नोन एज सेमी सर्कुलर रूट. इफ आवर हेडिंग इज फ्रॉम 01 to 179, choose the odd flight level in RVSM, and if our radial is 189 to 395, choose the even flight level in RVSM. Now you will say, sir, what is odd and what is even? If it is 29,000 feet, it is always even. If it is 30,000 feet, 31,000, 22,000, everything is even only. Then what does it mean by odd and even? See, we'll not see about these last zeros. Okay, if you are going to see, then this will be always even. We will see the first two. How? 29, matlab 29,000 feet, 31, 31,000 feet, 33, 35, likewise. Okay, 37, 39er, 41, 39er nahi, 39er. So if we are going to fly on these flight levels, odd wale, then we should choose odd flight level. And if we are going to choose, if we are going to have, okay,
fly on these even flight levels, then we are going to choose even flight levels. समझ में आया? किसको बोलते हैं ऑड फ्लाइट लेवल, किसको बोलेंगे इवन फ्लाइट लेवल? क्लियर? क्लियर। सो अब देखो इसका जरूरत क्या पड़ा, ये तो हमारे थे प्लानिंग के टाइम पे. नाउ यू मे आस्क सर व्हाई 000 और 360 डिग्री and 180 degree is not mentioned here in any direction. These two are basically not any direction. These two are poles, north pole, south pole. ठीक है? तो when you are flying in this, you cannot you say कि we are flying easterly or westerly. You are flying to the pole. तो pole पे किसी भी डायरेक्शन को किसी भी टाइप के फ्लो ऑफ डायरेक्शन को एज्यूम नहीं करते हैं. तो 000 and 360 and 180 is exempted. तो ऐसा बनाया गया कि अगर हम 1 से 180 के बीच में रेडियल रिपोर्ट कर रहे हैं इन आरवीएसएम, इट शुड बी ऑड फ्लाइट लेवल, एंड 181 से 359 के बीच रिपोर्ट कर रहे हैं आरवीएसएम में, देन इट शुड बी इवन फ्लाइट लेवल. ये तो है प्लानिंग की बात. अब आती है इसको कंप्लाई कैसे करेंगे. नथिंग. द फर्स्ट एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैड एक्सप्लेन्ड अबाउट यस्टरडे आरवीएसएम में कि if you want to fly under RVSM, then there are requirement of certain equipments. It should be serviceable in your aircraft. What was those? 2 independent altitude measurement system. ठीक है, यानी आपके pitot system के 2 independent system होने चाहिए. Then autopilot. Then 1 secondary surveillance radar, that is transponder, either mod A or C or mod S. And टिकैस और इकास का सेकेंड वर्जन, नॉट 1, टिकैस 2 आरए वाला, जो हमको रिजोल्यूशन एडवाइजरी देगा, वो वाला टिकैस. टीए वाला ओनली नहीं, टिकैस 1 नहीं, टिकैस 2 नहीं. ठीक है. सो रूल सेज एट एनी मोमेंट आइदर ऑफ दीज इक्विपमेंट्स आर फेल्ड, यू बिकम अनेबल टू फ्लाई अंडर आरवीएसएम. इन चारों में से कोई सा भी फेल हुआ, आप तुरंत आरवीएसएम नॉन कंप्लायंट हो जाते हो. ठीक है. इसके अलावा भी चीज है क्या, क्रूज का ट्रेनिंग. अब रास्ते में किसी का ट्रेनिंग तो एक्सपायर होगा नहीं, वो तो पहले ही पता रहता है ना कि कब एक्सपायर होना है. दैट विल बी अ डेट एट लीस्ट. तो रास्ते में क्या प्रॉब्लम आएगा कि आपका एयरक्राफ्ट नॉन आरवीएसएम हो जाएगा. मतलब इन चारों में से कोई सा भी इक्विपमेंट खराब हुआ तो आप नॉन आरवीएसएम हो जाओगे. एंड आरवीएसएम में फ्लाई करते करते अगर आपका कोई सा इक्विपमेंट खराब होता है, then your first and foremost plan shall be take exit from RVSM level. Leave RVSM level as soon as possible. ठीक है, जितनी जल्दी हो सके आप RVM envelope को exit करो. ठीक है, because these are high traffic zone. Your failure of any of one of your equipment may lead to disaster there. So don't take that chance. कोई भी इक्विपमेंट फेल होता है तुरंत RVSM एयरोस्पेस को खाली करो. ठीक है. अब हमने पढ़ा था कि किसी भी टाइप का डेविएशन एटीसी से अप्रूव होना चाहिए. ठीक है. सो इस केस में भी अगर हमारा कोई आरवीएसएम इक्विपमेंट खराब होता है तो हम एटीसी को रिपोर्ट करेंगे और एग्जिट मांग लेंगे कि हमको बाहर आने दो. डन. और अगर आरसीएफ में कॉन्टैक्ट में नहीं है तो हम करेंगे डेविएशन एट ऑन. अगर कॉन्टैक्ट में है तो डेविएशन करेंगे एटीसी से पूछ के. अगर आरवीएसएम में है और आरवीएसएम अनेबल हो गया एंड आरसीएफ कंडीशन भी है, यानी एटीसी कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो हम करेंगे डेविएशन एट ऑन. क्लियर है सबको? यस, नो, एनीथिंग? नाउ एग्जिट मांगेंगे, इतना तो हमको पता चल गया. अब इसमें सेमी सर्कुलर रूल को कैसे अप्लाई करते हैं, कुछ नहीं सोचना है. अगर आप ऑड अल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहे हो तो जो आप एग्जिट का अल्टीट्यूड मांगोगे, ठीक है, रिक्वेस्ट फ्लाइट लेवल 270, वो भी आपका ऑड में ही होना चाहिए. अगर आप आरवीएसएम के अंदर ऑड अल्टीट्यूड पे हो तो आप ऑड का एग्जिट मांगो. अगर आप आरवीएसएम के अंदर इवन के कॉन्ट्रैक्ट में हो तो आप एग्जिट इवन का मांगो. ठीक है. 280 नहीं होगा, हाँ 280 होगा. 280, 260, 240, 220, मतलब 22,000, 24,000, 26,000 फीट एंड 28,000 फीट. ठीक है. गुड टू अंडरस्टैंड. If you are flying in even flight altitude in RVSM, then your exit shall also be even.
ठीक है. If you are flying in odd altitude in flight RVSM, then your exit shall also be odd. Is it clear to all? Yes. Clear. ठीक है. So we'll see the question type. ठीक है, how this question can be called and how answer can be given. So Kilo India Alpha, give me a flight plan using chart number 4 and that too of old chart, not version 2. ठीक है, ओल्ड वाले के चार्ट नंबर 4 से गिव मी अ प्लान. Giving the answer. Yes, sir. Go ahead, please. Don't take this much of time. ऐसा मत करो कि पहले लिख के फिर बोलेंगे. नो, ट्राई साइमल्टेनियसली, फटाक से शुरू करना चाहिए. गलत सही होगा देखा जाएगा. Sir, Visakhapatnam to Kolkata. ठीक है. Alternate Jamshedpur. ठीक है. Air India 880. Big turbulence medium. Light rule Zulu. Flight level 350. Scheduled flight. Time 0500. Airbus. Other information nil. Equipment standard. Route Alpha 465. Saket. Flight level 150. Lagos. Then Kolkata. If you are over Ismon, what is your flight altitude? The 350 only. Then will it be Zulu? नहीं सर, Yankee होगा. ठीक है, फ्लाइट रूल Yankee. चलो, देन इधर लेगोस भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है. सिंपली काकेट फ्लाइट लेवल 150 चलेगा. Oh. ठीक है, ओवर काकेट वी आर चेंजिंग टू फ्लाइट लेवल 150. नाउ let me see the plan. What you are saying? You are saying you are operating one aircraft from Visakhapatnam to Kolkata, alternative Jamshedpur, Air India 880 with turbulence medium. Flight rule Yankee, flight level 350, scheduled flight time of departure 0500, Airbus aircraft. Any other information is nil. Equipment standard and route information is this. Okay, all 13 parameters are here. I hope everyone has noted the plan and got the all parameters rightly. Okay. Now you can see one of the sample question type. Okay. That is, okay. You are, ऐसा लिखा रहेगा. You are 20 nautical mile to Ismon and your transponders failed. ऐसा लिखा रहेगा.
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सबको? इक्विपमेंट के कारण आपका RVSM इफेक्ट हो रहा है. So how this call will go, have a look. Air India, shall I give the answer? Everyone please make a note. ठीक है, Air India 880, correction. Bhubaneswar control, Air India 880 on 123.5. Airbus 320, IFR Visakhapatnam to Kakid and VFR Kakid to Kolkata. Flight level 350, Alpha 465, radial 055, 20 DME, inbound Ismon. Time now 0520. Unable RVSM due equipment. ठीक है, कुछ नहीं बोलना है कि ट्रांसपॉन्डर फेल या प्राइमरी एंटीमीटर फेल या फिर आपका ऑटो पायलट फेल, नहीं, अनेबल RVSM ड्यू इक्विपमेंट. ठीक है, अनेबल RVSM ड्यू इक्विपमेंट, यानी हम RVSM में फ्लाई नहीं कर सकते. क्यों? इक्विपमेंट के कारण. डन. रिक्वेस्ट फ्लाइट लेवल 230 for further flight. Estimating Kakid 0600, Lagos 0630, ETA Kolkata 0700, Air India 880. देखो क्या किया, पोजीशन रिपोर्ट दिया कि इस पोजीशन पे हमारा RVSM नॉन कंप्लाइंट हो गया बिकॉज ऑफ एनी इशू. सो व्हाट, रिक्वेस्ट फ्लाइट लेवल 230, तो 1000 फीट पे जाना चाहता हूँ और फर्दर फ्लाइट, या फिर इसी को आप दूसरे टर्म में बोल सकते हो, रिक्वेस्ट डिसेंड टू फ्लाइट लेवल 230, तो डाउन साइड का एरो. ठीक है, रिक्वेस्ट डिसेंड टू फ्लाइट लेवल 230 फॉर फर्दर फ्लाइट. एस्टिमेटिंग काकेट 6 बजे, लेगोस 6:30, ETA कोलकाता 7 बजे. Is this clear to everyone? Yes. Pakka? Everyone, is that clear? Clear है. Yes. ठीक है. Have you noted the answers as well? Note किया आंसर? हाँ, नोट किया. ठीक है. Now the question comes to you. ठीक है, देखो यहाँ पे तो RCF था, अभी सेम कंडीशन में देता हूँ जहां पे RCF है, सॉरी RCF नहीं था, अभी देता हूँ जहां पे RCF हो, प्रॉब्लम भी हो और RVSM भी फेल हो गया, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो? देखो क्या कर सकते हैं. You are 30 nautical mile from Ismon and your primary altimeter fails. ठीक है, you are under RCF. RVSM नॉन कंप्लाइंट हो गया, डेविएशन तो जरूरी है और RCF है, तो क्या करेंगे,
स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोसीजर हमने पढ़ा था ना, 15 नॉटिकल माइल बाएं दाएं, 15 डिग्री बैंकिंग लेफ्ट राइट एंड 20 नॉटिकल माइल आगे पीछे, ठीक है, लाइक दैट, एंड 500 फीट अप डाउन, सॉरी, ठीक है, 3 पैरामीटर, 500 फीट क्लाइंब और डिसेंड, 15 डिग्री टर्निंग लेफ्ट या राइट एंड 15 डिग्री बैंकिंग और रोलिंग लेफ्ट या राइट, 15 डिग्री टर्निंग लेफ्ट या राइट, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, आरवीएसएम में हमारा कोई सा भी कंडीशन फेल हो गया तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोसीजर से डेविएट करके इसके पैरेलल फ्लाई करते रहेंगे सीधा सीधा, तब तक जब तक डीजीसी फिर से कांटेक्ट में नहीं आता या फिर हम अपने डेस्टिनेशन के नजदीक नहीं पहुंच जाते तब तक। सो हाउ दिस विल गो, हैव अ लुक। आरवीएसएम के केस में हमारा फ्लाइट प्लान लिमिटेड है ना, क्योंकि आसपास बहुत सारे एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोसीजर, तो हम अपने पाथ से डेविएट करके इसी के पैरेलल फ्लाई करते रहेंगे जब तक डीजीसी फिर से कांटेक्ट में नहीं आ जाए या फिर हम अपने डेस्टिनेशन के नजदीक नहीं पहुंच जाए। So how this call will go, have a look. You need to deviate at your own, ठीक है, pan 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 pan, all aircraft in the vicinity of, ठीक है, in the vicinity of Ismon, जिस जगह पे आपको क्वेश्चन का रेफरेंस दिया है उसी के आसपास को आप अलर्ट जारी करेंगे। इन द विसिनिटी ऑफ स्मॉन, एयरबस 320, ठीक है, विशाखापत्तनम टू कोलकाता, करेंट पोजीशन ऑन फ्लाइट लेवल 350, अल्फा 465, रेडियल 055, 30 DME, आउटबाउंड स्मॉन। अच्छा, इस केस में आप स्मॉन और भुवनेश्वर दोनों में से कोई सा भी रख लो। वैसे आप हमेशा ध्यान रखना कि जिस किसी भी एमआरपी के साथ रेफरेंस में क्वेश्चन देता है उसी के विसिनिटी में आप अलर्ट जारी करो। तो 130 DME आउटबाउंड स्मॉन, ठीक है, टाइम नाउ 0545, ठीक है, enable RVSM due equipment and negative contact with ATC, ठीक है, negative contact with ATC. Now what we will do, these two conditions made us that we should deviate at our own. एक तो अपना RVSM non compliant हो गया and we are negative contact with ATC. So what we will do now, we'll say deviating at on, ठीक है, deviating at on 15 nautical mile right of alpha 465 and will climb 300 feet. All exterior lights are on, ठीक है, keep a lookout. Will fly parallel on deviated track. Parallel on deviated track. Air India 880. हमने क्या बताया कि ये दो कंडीशन आ गया कि हम अब डेविएट करना पड़ रहा है खुद से। सो डेविएटिंग एट ऑन, क्यों, अपने मन से दादागिरी है क्या? नो, वी आर अनेबल RVSM due equipment as well as we are on negative contact with ATC. So what we are doing, we are turning right for 15 nautical mile and climbing 300 feet, 500 में से 300 फीट, ठीक है,
ऑल एक्सटीरियर लाइट्स आर ऑन, कीप अ लुक आउट। यहाँ पे हमने लेफ्ट राइट टर्न और क्लाइंबिंग दोनों को ऑप्ट किया। तो इस कंडीशन पे, ठीक है, एक्चुअली दिस शुड बी टेल्ड हियर ओनली, दिस शुड बी टोल्ड हियर ओनली कि विल फ्लाई पैरेलल ऑन डेविएटेड ट्रैक। बट एज आई सेड कि ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, इंफॉर्मेशन होने चाहिए, ठीक है। ऑल एक्सटीरियर लाइट्स आर ऑन, कीप अ लुक आउट, एयर इंडिया 880। क्लियर है? Yes. All other stations, पक्का? is this clear to all? ये आपका आरवीएसएम इक्विपमेंट वो है, फेल है। हम्म, तो 300 फीट हाँ और 350 फ्लाइट लेवल तो ऑलरेडी है, तो क्लाइम कैसे हो 300? प्राइमरी अल्टीमीटर फेल है, दोनों नहीं फेल है, दोनों में से हम्म। एक, ठीक है, दोनों में से एक फेल है। अभी ठीक है, आपने बोला अनेबल आरवीएसएम इक्विपमेंट, तो इसको फिर क्वेश्चन में क्या 290 लिखा पे है? आना चाहिए ना, कहाँ आना चाहिए? बिलो 290? या फिर 290? नहीं, वही तो बात है। यू कैन नॉट आस्क फॉर एग्जिट फ्रॉम आरवीएसएम डायरेक्टली इफ यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद एटीसी। देखो, आप इस कंडीशन को समझो अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना, आपको बहुत अच्छा क्लैरिटी मिलेगा। यू आर ऑन अ जोन जहां पे आपके ऊपर नीचे ट्रैफिक मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज पे रहेंगे, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज, टिकस विकस देखते हुए। अब अगर आप, ठीक है, अब अगर आप यहां से एग्जिट मारोगे, ठीक है, तो पता नहीं कितने सारे फ्लाइट को किस किस लेवल पे डिस्टर्ब करते हुए जाओगे। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कीप डेविएटिंग एंड क्लाइंब कर लेते हैं 300 फीट। व्हाई 300 चूजन? कैन यू टेल मी, कैन यू अंडरस्टैंड इट बेटर? 1000 फीट का गैप है। अगर आप 500 फीट नीचे गए, कोई दूसरा एयरक्राफ्ट 500 फीट ऊपर चला आया, क्योंकि अप या डाउन दोनों पॉसिबिलिटी है, तो अगेन हम दोनों कोलिजन के स्टेज पे आ गए। So what we are doing, we are going for 300 only. This will also go 300. Again, we are having a gap of 400 feet. So this is a wide decision. ठीक है, वाइज डिसीजन। क्या हम अपने एक्चुअल पाथ से, जो कि आरवीएसएम कंप्लायंस को रिक्वायर करता है, उससे हटके किसी सेफ फ्लाइंग जोन पे फ्लाई कर रहे हैं जहां पे कोलिजन का पॉसिबिलिटी मिनिमम है। एक इक्विपमेंट फेल हुआ है, पूरा थोड़ी, प्राइमरी में से एक फेल हुआ है, कोई बात नहीं, चलेंगे आगे। एंड दीज आर द हाइपोथेटिकल सिनेरियो, डोंट अज्यूम इन रियल फ्लाइट, ठीक है। नहीं नहीं, मेरा डाउट ये है कि फ्लाइट लेवल 350 है ना, हम्म, तो डिसेंट हुआ ना 300। क्लाइंब किया है, क्लाइंब, विल क्लाइंब फॉर 300 फीट, 300 फीट और ऊपर चले जाएंगे। कृष्णा, ओके। कृष्णा, हाँ हाँ। वो वो 30,000 फीट नहीं बोल रहे हैं, 300 अच्छा, फीट अप किए हो तुम। ये 300 फीट है, फ्लाइट लेवल 300 नहीं है। डोंट कंफ्यूज विथ फ्लाइट लेवल इन नॉर्मल अल्टीट्यूड, आर यू गेटिंग? दिस इज नॉट फ्लाइट लेवल 300, दिस इज 300 फीट। अभी हम ट्रैक से हटते क्यों हैं? अभी देखिए, जिस पे आप जा रहे हो वो तो आपका एक अप्रूव्ड फ्लाइट प्लान है ही, ठीक है। तो हम उस पे जा रहे हैं। हम्म, अगर मान के चलिए आरवीएसएम इक्विपमेंट खराब भी हो गया, तो हमारा हाँ एक अप्रूव्ड फ्लाइट प्लान है, उस पे तो कोई उस हाँ, टाइम पे आएगा नहीं, तो उस पे भी तो कोलिजन का दैट खतरा नहीं है। दैट कॉल कांट बी टेकन बाय योर्स, ठीक है, ये कॉल आप नहीं ले सकते हो। जो आपको अप्रूवल मिला है, अगर आप प्राइमरी फ्लाइट एल्टीट्यूड को मेंटेन नहीं कर सकते, अगेन आई टोल्ड ना, हाइपोथेटिकली, ठीक है, हाइपोथेटिकली, नॉट रियल सिनेरियो, या हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि अगर आप इस कंडीशन को, अगर आप इस फ्लाइट लेवल को मेंटेन नहीं कर सकते हो, तो इस फ्लाइट लेवल को छोड़ो इमीडिएटली, ठीक है। अगर आप इसको मेंटेन नहीं कर सकते तो इसको छोड़ो। अगर एटीसी कॉन्ट्रैक्ट में है तो बाहर निकलो, नहीं है तो पहले अल्टर करके स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोसीजर इसको फॉलो करके आप सेपरेट हो जाओ उस फ्लाइट लेवल से।
then ask for exit. You getting it? 300 फीट अप एंड डाउन आने के बाद Fly parallel. अभी तो 80, हाँ पैरेलल में, बट ठीक है? अभी भी तो एटीसी से बात है नहीं ना, हाँ, चलते रहो कॉन्टेक्ट तो हम अपना पैरेलली। लॉस कर चुके हैं। हाँ, तो चलते लो पैरेलली। कब तक? जब तक दोबारा से एटीसी जब तक कांटेक्ट अपने में नहीं आता, या फिर आप अपने अपने डेस्टिनेशन के नियर है। डेस्टिनेशन के नजदीक नहीं आ जाते। ठीक है, जब डेस्टिनेशन नजदीक आए, अगेन गिव ए कॉल फॉर डेविएशन एट ऑन, बाहर जाओ। ठीक है, और जाके लैंड कर लो। क्लियर? बट आरवीएसएम एयरस्पेस को अपने मर्जी से क्रॉस नहीं करना है, नेवर। व्हाई? इफ यू क्रॉस, you are going to disturb many. So what you will do? You will deviate and fly with a safe flying zone. Clear है? क्लियर है। चलो. So this was the condition where you have seen कि you were under RVSM, RCF plus RVSM fails, where you had to take a call for deviation at on. अब अगला कंडीशन मैंने बताया था ना कि अब तब तक RVSM में फ्लाई करोगे जब तक ATC से बात नहीं हो पाई। तो अगला क्वेश्चन चलो यही आ गया। ठीक है, subsequent to the above, ठीक है, यानी ऊपर को देखते हुए subsequent to the above, ATC back in contact, यानी दोबारा से आपकी ATC से बात हो गई। अब क्या करोगे? कुछ नहीं, बोलेंगे कि हम डेविएटेड ट्रैक पे हैं और हमको RVSM से एग्जिट चाहिए। How this will go? Have a look. Bhubaneswar control, Air India 880 on 123.5, Airbus 320, Visakhapatnam to Kolkata. Current position on 15 nautical mile. Correction. Current position on deviated track. इस चीज को मेंशन करना है। अगर आपने डेविएशन किया है तो करंट पोजीशन ऑन डेविएटेड ट्रैक 15 nautical mile right of Alpha 465, फ्लाइट लेवल 353 नाउ, 300 फीट हमने क्लाइंब भी किया था, राइट? रेडियल 055, ठीक है, 35 DME, आउटबाउंड स्मॉल, 30 था, 5 नॉटिकल माइल आगे बढ़ गए। टाइम नाउ 0548, had deviated at on। अब हमने ऊपर बताया था ना कि ये डेविएटेड ट्रैक है, तो उसको रीजन भी बताएंगे कि डेविएटेड ट्रैक क्यों भैया। had deviated at on due अनेबल RVSM, ठीक है, एक तो अनेबल RVSM एंड नेगेटिव कांटेक्ट विथ ATC, इन दोनों ने हमको मजबूर किया कि आप खुद से डेविएट करो। तो अब क्या चाहते हो? अब क्या करने आए हो? कॉल रिक्वेस्ट फ्लाइट लेवल 270 फॉर फर्दर फ्लाइट्स एयर इंडिया 880। ये वाला कॉल समझ में आया? हम लोग डेविएटेड ट्रैक पे थे और पता चला ATC कांटेक्ट में आ गया, तो क्या? कुछ नहीं, रिपोर्ट करो कि राइट नाउ वी आर ऑन डेविएटेड ट्रैक। क्यों किए थे डेविएटेड भैया? बिकॉज वी हैड टू कंडीशंस व्हिच मेड अस टू डेविएट एट ऑन। नाउ व्हाट यू वांट? कर ही लिया तो अब क्या चाह रहे हो? नाउ आई वांट कि आई वुड रिटर्न टू फ्लाइट लेवल 270 फॉर फर्दर फ्लाइट्स, या फिर आपका जैसे इसमें था फ्लाइट प्लान 110 फ्यूचर का, तो डायरेक्ट वही मांग लो, फ्लाइट लेवल 110 वहीं जाना ही है, तो अल्टीमेटली उतने पे ही चल जाते हैं अभी। Is this clear to all? सर एक डाउट है,
हाँ हाँ सर हमने डेविएट किया तो फिर रेडियल भी तो चेंज हो गया होगा ना। हम्म आपने रेडियल अभी भी 055 लिया है। वेरी गुड डाउट। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा था कि पैरेलल ऑन डेविएटेड ट्रैक, डेविएट कर लिए फिर से अपना रेडियल को 55 डिग्री पे ही फिक्स कर लिए। सो एज्यूमिंग कि वी आर फ्लाइंग पैरेलल, यानी रूट के एंगल को अपने हेडिंग से हम मैच करवा के चल रहे हैं। सो दिस इज समहाउ पैरेलल। एनीवे, if you report radial somewhere up and down, this will work. ठीक है, not an issue. Clear? Okay. Understood? So this is the answer where you had deviated at your own, but ATC back in contact. Similarly, take the example of weather. ठीक है, you can say had deviated at on due bad weather on route and negative contact with ATC. हमने खुद से डेविएट किया था, क्यों? क्योंकि एक तो सामने का मौसम खराब था और नेगेटिव कांटेक्ट विद एटीसी। आप क्या चाहते हो? वुड लाइक टू रीजॉइन सो एंड सो रूट अल्फा 465 ओवर काकिड, रिक्वेस्ट रीजॉइनिंग क्लियरेंस। डन, वेरी सिंपल। गेटिंग द आंसर टाइप। डेविएशन एट ऑन हमने रूटिंग की कंडीशन में भी किया था, रिमेंबर, बैड वेदर के कंडीशन में। हाँ तो जब भी आप डेविएट करते हो आपको एटीसी से अप्रूवल चाहिए। अगर एटीसी अवेलेबल नहीं है और कंडीशन बहुत ज्यादा इमरजेंसी बन रही है, खुद से डेविएट कर लो। बैड वेदर का केस है तो स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोसीजर से ज्यादा आप लेटरल डेविएट कर सकते हो टिल 40 नॉटिकल माइल, 50 नॉटिकल माइल। ठीक है, बट अगर आरवीएसएम है तो स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोसीजर तक ही। एंड आपने डेविएट कर लिया, डेविएटेड ट्रैक पे हो, एटीसी वापस से कांटेक्ट में आ गया, तो उसको बोलेंगे कि भैया एक बार गलती किया मैंने, बिकॉज ये प्रॉब्लम था, नाउ आई वांट टू करेक्ट एवरीथिंग बैक, शैल आई जॉइन द वापस अपना अल्टीट्यूड। ठीक है, और शैल आई हैव दिस करेक्टिव एक्शन कि आरवीएसएम फेल ही हूं, तो अगले में हमको फ्लाइट लेवल 110 पे जाना है। तो एक काम करो, गिव मी द एग्जिट पाथ फॉर आरवीएसएम। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? अरे अब ठीक है, तो हमने वो भी कंडीशन देखा कि एटीसी बैक इन कांटेक्ट एंड यू आर ऑन डेविएटेड ट्रैक, तो क्या करेंगे? उसको रिपोर्ट कर देंगे कि भैया हमने खुद से डेविएट कर लिया था, नाउ आई वांट दिस मच ऑफ करेक्शन। नाउ अनदर केस इज एटीसी बैक इन कांटेक्ट, ठीक है, एंड आरवीएसएम नॉट क्लियर्ड। ठीक है, आरवीएसएम नॉट क्लियर मतलब आरवीएसएम आपका अभी भी फंसा हुआ है, आरवीएसएम नॉट रिकवर्ड। तो यही केस जस्ट ऊपर वाला, एटीसी कांटेक्ट में आया लेकिन हमारा आरवीएसएम स्टिल प्रॉब्लमेटिक ही था, तो हमने एग्जिट पाथ मांग लिया कि हमको आरवीएसएम से निकलने का परमिशन दे दो। ठीक है, अभी का कंडीशन देखते हैं कि एटीसी बैक इन कांटेक्ट एंड आरवीएसएम आल्सो रिकवर्ड। ठीक है, ठीक है, एटीसी बैक इन कांटेक्ट एंड आरवीएसएम रिकवर्ड, तब क्या करोगे? देखो क्वेश्चन रहेगा सब्सिक्वेंट टू अबव, यानी पिछले कंडीशन को देखते हुए, सब्सिक्वेंट टू अबव एटीसी बैक इन कांटेक्ट यू आर स्टिल ऑन डेविएटेड ट्रैक, ऐसा लिखा रहेगा क्वेश्चन, यू आर स्टिल ऑन डेविएटेड ट्रैक, टीए टेक एक्शन। तो क्या कॉल जाएगा? हैव अ लुक, भुवनेश्वर कंट्रोल एयर इंडिया 880 on 123.5 Airbus 320 विशाखापट्टनम टू कोलकाता ऑन डेविएटेड ट्रैक। चाहो तो पोजीशन बोलो, चाहो तो प्रेजेंट पोजीशन बोलो, चाहे तो करंट पोजीशन बोलो, या डायरेक्ट पोजीशन बोलना शुरू कर दो। ऑन डेविएटेड ट्रैक
15 nautical mile, right of Alpha 465, radial 055, flight level 353, DME 18 outbound, Ismon, time now 0550 hypothetically. ठीक है, what you want? Had deviated at on reporting, खुद से deviate किया था, due enable RVSM, ठीक है, enable RVSM and negative contact with ATC. अब क्या चाहते हो भैया? RVSM recovered, यानी सिस्टम जो माल फंक्शन किया था अभी ठीक लग रहा है, ठीक है। एयरक्राफ्ट एबल, पहले अनेबल था, एयरक्राफ्ट एबल टू रिज्यूम नॉर्मल नेविगेशन, इसको अच्छे से समझो, RNN, रिज्यूम नॉर्मल नेविगेशन, इक्विपमेंट ठीक हो गया, हम फिर से RVSM में फ्लाई कर सकते हैं। बैड वेदर था, पार कर लिए, फिर से हम रिज्यूम नॉर्मल नेविगेशन कर सकते हैं, यानी जो हमारा अप्रूव्ड फ्लाइट रूल था उस पर रिटर्न हो सकते हैं। तो उस चीज को बोलते हैं रिज्यूम नॉर्मल नेविगेशन की, जो हमने प्लान में लिखा था उसको हम कैरी आउट कर सकते हैं। RVSM रिकवर्ड, एयरक्राफ्ट एबल टू रिज्यूम नॉर्मल नेविगेशन, ठीक है। वुड लाइक टू, ठीक है, वुड लाइक टू रिटर्न टू अप्रूव्ड पाथ, वुड लाइक टू रिटर्न टू अप्रूव्ड पाथ Alpha 465 and flight level 350, ठीक है, will join Alpha 465 over Kakid, estimating Kakid. You're barely audible. On 2? Am I on 2? Yes, and Everyone? some disturbance is there. On to. Means interruptions in voice. या कैसा disturbance? Noise or what? Yes, sir, ऐसे टिंग 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 आवाज आ रही है बार बार। Okay. I think I was writing hardly with the stylus, तो स्क्रीन टैप आवाज आ रहा होगा। चलो मैं इसको थोड़ा सा स्मूथ करता हूँ। फिर से वहाँ RVSM पे रिपीट कीजिए। हाँ हाँ हाँ, RVSM ये recovered, RNN RVSM recovered and aircraft able to resume normal navigation, RNN, resume normal navigation. तो क्या चाहते हो? Would like to return to approved path Alpha 465 and flight level 350. Will join Alpha 465 over Kakid, estimating Kakid 0610. ETA Kolkata 0700. Request permission Air India 880. क्लियर? मेन चीज देखो यही था कि RVSM रिकवर्ड, ठीक हो गया है, ठीक है। बैड वेदर एरिया क्रॉस्ड, ठीक है, या फिर प्रेजेंट वेदर इज क्लियर, स्काई क्लियर, मिनिमम टर्बुलेंस, जो भी है आपका उस टाइम का कंडीशन, ठीक है, या फिर बैड वेदर सिनेरियो रिकवर्ड, यानी हमारा करंट ऑपरेटिंग कंडीशन प्लीजेंट है, ओके है। RVSM रिकवर्ड, RVSM वापस अपने स्टेज पे रिकवर्ड हो गया। एयरक्राफ्ट एबल, पहले अनेबल हमने बोला था RVSM, नाउ एयरक्राफ्ट एबल टू रिज्यूम नॉर्मल नेविगेशन, तो वुड लाइक टू रिटर्न टू अप्रूव्ड फ्लाइट पाथ, जहां पे हम थे उधर ही आना चाहते हैं, दैट इज Alpha 465 एंड flight level 350. व्हाट यू वांट? विल जॉइन, हम चाहते हैं कि Alpha 465 को ज्वाइन करें ओवर काकिड एंड एस्टिमेटिंग काकिड एट 0610.
ETA कोलकाता 0700 रिक्वेस्ट परमिशन किसका रीजॉइनिंग का सर बहुत ज्यादा नॉइज है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। now also is there any noise I don't think it is there tell me now सर स्टिल what kind of noise is there रेडियो 2 all other stations how do you read me now रीडिंग सर रेडियो 2 स्टिल okay hold on let's see I am audible now सर ऑडिबल better ठीक है आई थिंक ये होटल का वाईफाई कुछ तो प्रॉब्लमेटिक है ठीक है व्हाट आई कैन डू फॉर नाउ अभी तो कुछ नहीं कर सकते आई थिंक 3 क्वेश्चन टाइप तो हमने आज एक्सप्लेन कर ही दिए एंड दिस मुझे सफिशिएंट आई एम एक्सप्लेनिंग दिस अगेन एवरीवन हैव अ लुक ठीक है वी हैव टोल्ड ठीक है कि हमने खुद से डेविएट किया था अपना करंट पोजीशन बताते हुए व्हिच इज ऑन डेविएटेड ट्रैक हमने खुद से डेविएट किया था क्यों क्योंकि अनेबल RVSM एंड नेगेटिव कांटेक्ट विद ATC नाउ RVSM रिकवर्ड एंड आई वांट टू जॉइन ओरिजिनल फ्लाइट पाथ अगेन ठीक है तो हम कब किस फ्लाइट पाथ पे रिटर्न होंगे उसका एस्टिमेट बताते हुए रिक्वेस्ट परमिशन इज दिस क्लियर टू ऑल सर इसमें ETA रिवाइज नहीं होगा वेरी गुड revised ETA Kolkata done यस सर इधर भी सबसे पहला कॉल में भी ठीक है अनेबल RVSM में जो हमने डेविएशन लिया था नहीं इस केस में नहीं होगा ये तो जस्ट RVSM का एग्जिट है अच्छा इन दिस केस वेयर हमने डेविएशन लिखा तो रिवाइज्ड ETA लिख के उसको क्लोज कर देंगे डन so let me go to the lecture plan again what is saying lecture number 17 ठीक है लेक्चर नंबर 17 these topics ठीक है I hope I had cleared all these 5 topics today वेदर का हमने सिनेरियो नहीं बताया बट उसका आंसर मैंने बताया था वर्बली ठीक है सो आई विल एंटीसिपेट एंड आई होप कि आप लोग इसका आंसर बना लोगे ठीक है इस स्टेज पे आके अगर मैं आपको हिंट दे देता हूं कि इसका ये आंसर हो सकता है तो आपको उसका आंसर बना लेना चाहिए anyhow if you don't think you can make that answer then open the note वहां पे इसका कंडीशन लिख के इसका आंसर एक्सप्लेन किया होगा सो टेक द लिटिल हेल्प देयर एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर सी एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर देखो डेविएशन एट अराउंड टू अवॉइड बैड वेदर ATC बैक इन कांटेक्ट ATC बैक इन कांटेक्ट ठीक है तो आप इसका आंसर बनाओ क्लियर सो look at the page number 25 6 and 7 for the RVSM and deviation plans where ATC is back in contact or ATC was not in contact ठीक है so I hope till lecture 17 I was able to clarify all the topics and doubts ठीक है अभी तक पढ़े हुए टॉपिक में किसी को कोई डाउट है yes no anything Sir. negative and I have one complaint nobody has asked me till the time that sir why you had left sector request आपने ये अभी तक क्यों नहीं पढ़ाया किसी ने नहीं बोला ठीक है
मैं लेक्चर 17 तक के टॉपिक को कह रहा हूँ खत्म किया, और कोई लेक्चर 14 पे ध्यान नहीं दे रहा है कि सर आपने ये क्यों नहीं पढ़ाया अभी तक, ये बताओ पहले। By the way, I had left it purposely, and I remember this topic has been left to explain, but nobody has asked me. Means none of you are getting serious about the lecture plan. ये आपका मॉनिटर है ना, आपका ग्रोथ है, आप अपना मॉनिटर करो प्रोग्रेस, हाउ मच यू हैड कवर्ड। सर बोल रहे कि लेक्चर 17 तक पढ़ा दिया, पढ़ाई की नहीं, कौन काउंटर करेगा? ठीक है, so I had left that purposely. I'll tell you when the right time will come to explain that topic. And I think Wi-Fi of this hotel is not good. I need to do something. I need to change the room, or I need to sit close to the router, whatever is possible. So from tomorrow onwards, we'll see what I can do better. For today, I think the 4 topics that I had explained, those are itself a lengthy topic. उसका थोड़ा सा रिवीजन करो, RVSM के कॉल्स का खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड वन थिंग आई विल सजेस्ट, जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट किए विद द रिटन आंसर, विद द सॉल्व्ड आंसर टाइप, उसको थोड़ा सा इंप्रूव करो, ठीक है। दिन में 3 क्वेश्चन जरूर से जरूर बनाओ, एंड व्हाटएवर डाउट यू आर गेटिंग प्लीज डू लेट मी नो। अभी तक तो कोई मेरे से डाउट नहीं पूछ रहा है कि सर ये भी कॉल मिला, ऐसा भी कॉल मिला, वैसा भी कॉल मिला। तो जो मैंने पढ़ा है उससे डिफरेंट कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्रिंग दैट डाउट टू मी एंड आस्क व्हाई इट इज सो एंड हाउ इट इज सो इवन। चलो आप लोग प्रैक्टिस करो, आई एम लिविंग 1 आवर अर्ली। आज ही खत्म हो गया आपका? सर एक डाउट था, बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा है आपके, लाइक रीडिंग यू 3 में अभी आवाज खत्म है। इज दैट बैकग्राउंड नॉइज देयर अगेन? समथिंग जब हम हेडफोन जैक लगाते हैं ना, जो आवाज आती है कंटिन्यू। हिसिंग एंड हमिंग। सर रूम चेंज करवा लो पहले यार। तो आवाज ही आना बंद हो गया। Now am I audible or not? RCF है। Am I audible or not, everyone? अभी आ रहा है ऑडिबल लेकिन। सर बहुत ज्यादा नॉइज है। Okay. सर वो चार्म साउंड की तरह आता है ना, जैसे रेडियो कम्युनिकेशन के टाइम पे चर 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 चर। Understood. I'm sorry for today. We'll see from tomorrow. Tell me now what is the doubt, Kilo India Alpha, if that can be clarified with this. सर एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सेंड किया है उसमें फ्लाइट रूल यांकी है और अदर इंफॉर्मेशन में दिया है ओनली VHF, तो उसमें क्या करना रहता है? VHF and VFR में डिफरेंस है ना। VHF मतलब है कि आपके पास कम्युनिकेशन खाली VHF है। So you're not audible. Tell me now if I'm audible. अभी आवाज आ रही है? बहुत Yes. ज्यादा नॉइज आ रहा है। अच्छा, बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है। I'm not able to all. Are you able to be? The read you one. They're not audible.
ज्यादा नॉइज है। Now, am I audible? Good. अभी भी वैसा ही है? अभी ठीक हो गया। ठीक हो गया ना? हम्म। रिकवर्ड का अनाउंसमेंट कर दूं? क्या बोल रहे हैं आप? RVSM रिकवर्ड का अनाउंसमेंट कर दूं? ये क्या होता है? नहीं, अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो ये तो फिर ATC कॉन्टेक्ट रिकवर होगा ना। कृष्णा, हाँ। और ठीक है, ऑडिबल नाउ? ये म्यूट पे करके बोल रहा है क्या? बोल भाई, क्या डाउट था? नहीं भाई कोई डाउट नहीं था, मैं कुछ और बोलने वाला था। हाँ, उसका जो कंडीशन था ना, दोज टू आर डिफरेंट थिंग। VHF इज कम्युनिकेशन सिस्टम और VFR में उसको लग रहा होगा कि मैं लिखा हुआ है VFR नॉट, क्या कहते हैं उसको, व्हाट यू आर सेइंग, नॉट सर्विसेबल। जैसे फ्लाइट VHF VFR में इज, क्या होता है ना, फ्लाइट लेवल होता है, तो उसके ऊपर उड़ रहा हाँ है तो VHF फाइल कर लिया। and any other information was only VHF, that is for communication, not related with flight rule. So she might get confused with that. We'll see what she is getting to try and understand. ठीक है, चलो, I think those 4 topics I had explained till now, that is so much enough for today, and we'll see from tomorrow onwards what I can do better, ठीक है, with this network and all. I'll definitely ask for some another alternate options, and we'll continue from tomorrow. Okay, Kilo India Alpha, about your doubt, if I'm getting it rightly, question was about flight rule Zulu, that is VFR IFR, and any other information is about VHF only, that is communication. So whenever in the air, अगर आपको HF पे बात करने की जरूरत पड़े या रेडियो से कॉल आए, that time you can say only VHF communication system available, we cannot call on HF. Clear? Okay, yes sir. These two are different. VFR and VHF है वो, ठीक है? ठीक। Okay. Any other doubt, anyone? डाउट है, ये अपना Doubt? कंट्रोल हाँ, कंट्रोल है ना, जिस पे कॉल करते हैं हम। ये अपना, ये जैसे कोलकाता के पास भी है, भुवनेश्वर के पास भी है। very good. When to know which one? Which one will be the near one या फिर control boundary, दोनों को देखना पड़ता है. While explaining the charts, I had said it lightly, we'll see on the control boundary कि हम कब किसके control boundary के अंदर में. अगर control boundary भी give up हो चुका है, then we'll look at the nearest कि किसके नजदीक हैं. We are near Ismon, तो भुवनेश्वर को करेंगे. चार्ट शेयर हो रहा है सबको? राकेट क्रॉस किया तो फिर उसको पकड़ लिया, कोलकाता को। कोलकाता को पकड़ लिया. देखो कंट्रोल बाउंड्री है ना बनाया हुआ क्लियरली, एंड इन द प्रीवियस क्वेश्चन इट वाज कि 30 nautical mile from Ismon, so we are under control boundary of Bhubaneswar. Are you getting it? कोलकाता का ये रहा,
ब्लू कलर से जिसको एनोनेट कर रहा हूं, ठीक है, ये रहा कोलकाता, ये रहा भुवनेश्वर. So 30 nautical somehow here, it will go to Bhubaneswar only. Anyhow, if we are not on anybody control zone, then we'll find the nearest. किसको कौन नजदीक पड़ेगा. अब नजदीक में भी अगर दोनों एकदम बीच में पड़ गया तो अपकमिंग वालों का, ठीक है. Getting the clarity? कुछ नहीं है, just you need to be assertive कि हमने इसी को कॉल क्यों किया और क्या लॉजिक था आपको डिटरमाइन करते टाइम. So whatever you have think while determining the topic, same need to be told to examiner कि सर ऐसा मैंने सोच के इसको कॉल दिया, बस. ठीक है. Yes, no, anything? Okay, clear? Yeah. Yes. ठीक है. So I think that's enough for today. 4 topics what I had explained, that is okay to practice and so much to practice. Even if I say उसको प्रैक्टिस करो एक बार नोट्स से, खुद से, फ्लैट प्लान के थ्रू. आपने जो आज मैंने जो बोला उसको सुन सुन के लिखा है, समझो. विल कैरी फर्दर फ्रॉम द टुमारो. ठीक है. लीव दिस क्लास हियर ओनली फॉर टुडे. ठीक है. चलो, थैंक्स फॉर जॉइनिंग. विल सी यू टुमारो एंड thank you for your cooperation and I'm really sorry about this inconvenience caused. We'll see what can do better from tomorrow. ठीक है. Mm-hmm. Okay, sir. Good night. Thank you, sir. Good night everyone. Good night. Good night.